that Swati as well as Hina, and the topic that we have today, in fact, thank you so much for Sudhanshuji and Varisji for joining us, is that why is politics polarized? Now, this is a huge topic. It has multiple issues covered over the next half an hour. Some of the current issues that we are facing in the country that are being talked about in the news, and of course, we've seen various political parties also talk about this. But I'm going to begin with you, Varis Pathan. Your political party, the MIM, and your leader, Mr. Owaisi, is often accused of using the politics of polarization. You know, whether it is Sambhal, whether we're looking at the current controversy surrounding Chhawa, of making certain statements that are aimed at polarizing. Is that a fair accusation? Well, this is totally a false and baseless allegations against us for polarization. You, me, everybody knows who's master and who's PhD in polarization. That is the BJP. So you should not say that we polarize. Yes, we talk about the minorities, we talk about the Muslims, and see what is happening in the country, Madhav. Since the last 10 years, what we have been seeing is only polarization by the BJP. The BJP is totally lost on its priorities. There is no word for development, there is no word for employment, there is only one word, hatred towards the Muslims, spread hatred, do polarize, take our two votes, and enjoy the seat. This is what the BJP government is doing. What have done for the development? Today also what we see in the country, the BJP, since they have come to power, is they hate our hijab, they hate our food habits, they don't like our mosque. Now the thing which they have gone ahead is that now the eyes are on our Waqf land. The Waqf land is our own land. It belongs to our orphans and to our poor people. This was donated to us as a private property. But the BJP wants to usurp that. And why? Just to see to it that our other people are happy, to polarize the situation. They are making the amendments to the Waqf. So this is okay. Polarization. And why to create hatred? When we live in democracy, when there is a law, there is an amendment to it, there is no need for getting this law. Let's get in Sudhanshuji in this. It's not us. Let me complete in 10 seconds. Yeah. Okay, complete your point. 10 seconds, complete. मैं सुधांशु जी आपसे ही पूछूंगा वफ का जो कानून लाने की जरूरत क्या थी बताइए आप मेरे को। आपको तो पता है खुद को कि समझो 9 लाख एकड़ है या 9.5 लाख 10 लाख जो भी है हमारी जमीन है। आप ये अमेंडमेंट ला के हमको पता है कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है। नीयत उनकी है कि हमारी जो वफ की जमीन है इसको यूसर्फ कर दे। आपके पास हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, बताइए आप मुझे वहां पे आप किसी मुसलमान को एंट्री देंगे? आप नहीं देंगे। तो हमारे वफ बोर्ड के अंदर आप नॉन मुस्लिम को एंट्री देके क्या बताना चाहते हैं? क्यों आप उसको एंट्री देना चाहते हैं? वफ यूजर का क्यों आप हटाना चाहते हो? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे अपन बातचीत के अंदर बताएंगे, मगर पोलराइजेशन पे बात है तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फोटे है कि पोलराइज करो फॉर देयर ओन पेक्युलर बेनिफिट्स। Sudhanshu. I would like to respond on the starting of the polarization and on the Waqf board what he has said. From where this issue started, it was Abu Azmi of Samajwadi Party has unnecessarily raked up the issue of Aurangzeb. It was not us. Then followed by Mr. Rashid Alvi of Congress Party, followed by Imran Masood of Congress Party. Then Imran Pratapgarhi, who is a member of Parliament of Congress Party, has gone to the Aurangzeb's grave and Fatiha Padha Sahib. Then Ramji Lal Sumana unnecessarily brought the dastardly comment of Babar ki aulad and Rana Sangar, etc. Is it we are doing? Then what's the sort of allegation? It's non-substantive and ridiculous. And if somebody is saying, now coming to the next aspect, if somebody is saying that because of the Chhawa movie, the polarization has started, I am unable to understand that if the Schindler's List and Saving Private Ryan has become an internationally acclaimed movie on the atrocities on Jews, none of the German got offended. When we talk about that the Clive has done so much of atrocities, Hastings has done so much of atrocities, if the General Dyer has done that type of thing, if Bhagat Singh's movie was done and shown that how brutal the Britishers were, none of the Christians wrote up, oh, it is hurting our sentiment. Then how come the Babar Tughlaq Aurangzeb has become connected with the Muslims, and what is the logic of polarization in the modern world, I want to know. That is the mindset which is being built up inside, that you remain connected or rather than set in the hundreds-year-old background and forget about the modern age of cyberspace, AI and other things which the world is marching ahead. So this is the fundamental problem. And that's why I would like to see one more thing, that if you look in the present politics, it's a food for thought all the Indians, that for Aurangzeb, cutting across the party line, all the Muslim leaders were standing. I'm not saying the Muslim society, but all Muslim leaders standing. Whether it is a Congress, Communist, Samajwadi Party or his party MIM, Muhafiz-e Majlis, Muhtarme Ittihadul Muslimin, Siyasat-e Secular Siyasat,
He is having double M in that. But for Hindus, cutting across the party line, Hindu leaders were not standing for their Bhagwan. Now it has to point to think about it. For a tyrant ruler cutting across the party line, the Muslim leaders are standing, and for our God cutting across the party line, the Hindu leaders were not there. On the Waqf, I would like to say, it's not the issue. If it has been your land, it could have been a logical. But आपकी जमीन पे कोई क्लेम कर दे, आप जमीन ऐसे ही दे देते हैं, कोर्ट में जाते हैं ना। 120 प्रॉपर्टीज दिल्ली की क्लेम की वक्फ बोर्ड ने, 2014 में जाते आते कांग्रेस ने सब दे दी, गवर्नमेंट ने। Can government claim a single instance in which the government has given away the property without contesting in the court? That's why we are saying it's not the property of any person or community, it is the properties of the government which has been claimed, and that's why even the claim was done on the parliament. And one more thing, he's a lawyer, so he will be able to understand better. There is a time bound for the claim on the property, that is 12 years. If more than 12 years have gone to the possessions, nobody can claim. But in the Waqf Board case, it has been removed. Then, in the case of Places of Worship Act, the time was fixed on 15th August 47, but in the Waqf case, it is also removed. Means the Tiruchirappalli temple in Tamil Nadu was claimed on the basis of some order from Arcot Ka Nawab in 1572. What sort of logic it is? And even if you consider that this is a Waqf land, so Places of Worship Act what says? It says that no places of worship can change the status in 15th August 47. So Tiruchirappalli ka mandir pe claim jo hai, it is in contradiction to the Places of Worship Act. It should have been withdrawn. No, वो भी नहीं करना है. Places of Worship Act का भी वही यूज करना है जहां पे हिंदू समाज को डैमेज हो, वक्फ को भी वही करना है जहां डैमेज हो. और लास्ट में मैं कहूंगा, इट्स अ वेरी पिक्यूलियर लॉजिक. At the 1947, there were 30,000 acre land with Waqf Board. Now it is 9,60,000. ये कहते हैं हमने दी. साहब वो सोसाइटी इतनी प्रॉस्पेरस है कि 9,30,000 एकड़ तो दान दे दी है, और फिर कहते हैं साहब हम तो इतने गरीब और मजलूम हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए. Such a dialectic logic, have you ever heard? Nobody can believe this. तो इसलिए मैं सिर्फ कहूंगा, ये just one line. मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की. इस सेकुलर मर्ज ने ही इस देश को ज्यादा प्रॉब्लम. All right. Waris Pathan, I'm coming back to Aurangzeb in just a minute, but one of the points that he made, and you mentioned Waqf by user. Now the committee has made it very clear that as far as the bill is concerned, Waqf by user is only going to apply prospectively, it's not going to apply retrospectively. So some of the concerns that you are expressing right now are not factually completely correct. Your response, and also response to what Mr. The Trivedi concerns said. which we have been showing is truly, they are true. See, the All India Muslim Personal Law Board has taken out a website that whosoever objects this amendment bill, they can raise it. And you won't believe what the crores of Muslims have objected to this. So when the Muslims have totally rejected the Waqf bill, why does Modi want to get it? The moot question is that. That is why we said, they will say, okay, this property is under dispute, now you cannot go there, they go into the court. These things are going to happen in the country. So why do they want to get into all this kind of thing? Now Sudhanshu ji spoke about Aurangzeb. मैं सुधांशु जी आपको एक बात बताना चाहूंगा. ये पोलराइज का ही टॉपिक चल रहा था. औरंगजेब का नाम लिए बिना आप लोग सियासत नहीं कर सकते. 300 साल बाद भी आज औरंगजेब आपकी मदद के लिए आ गया. अरे भारत के मुसलमान को क्या लेना देना औरंगजेब के साथ में, बताइए. वो चले गए. अब 1788 के अंदर 1788 में औरंगजेब का डेथ हुआ. 111 साल उसके बाद तक मराठाओं ने रूल किया. आपने जब कबर नहीं खोदी उसकी, वो मराठाओं ने कबर नहीं खोदी 111 साल. अब आपको क्यों खोदना है कबर? चलिए कबर खोदने चलते हैं. अगर कबर खोद के ले जाने से देश का विकास होता है, मैं आपके साथ चलता हूं, कुल्हाड़ी लेके हम दोनों जाके मिलके खोद के आएंगे. अगर कबर खोदने से मेरे युवाओं को रोजगार मिलता है, चलिए अपन कबर खोदते हैं. अगर कबर खोदने से ट्रिलियन इकोनॉमिक बन जाती है अपनी, चलिए कबर जाके खोद के आते हैं. अगर कबर खोदने से 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जमा हो जाता है, मैं आपके साथ चलता हूं सुधांशु जी, अपन कबर खोद के लेके जाएंगे. अरे कबर खोदने से कुछ फायदा नहीं होना रहा, सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन ही को आपने बता दिया, देख क्या हिंदुत्व के चैंपियंस हमने क्या करके दिखा दिया. जबकि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, फिर आप बोलेंगे नहीं भी वो वक्फ की जमीन आ गई. तो आपको पोलराइज करना है तो कुछ अच्छी चीज पे लाइए. खाली हिंदू मुस्लिम. पिछले 30 दिन से आपने सही कहा,
एसपी ने आपका काम कर दिया, उसके एमएलए ने आपको बराबर झुंझुना दे दिया, औरंगजेब का नाम लेके आप बजाते जा रहे हो। अभी उसके एमपी ने परसों एक झुंझुना दे दिया, आप बजाते हो रंगा संगा का। तो मतलब एसपी ही आपकी बी टीम है, तो आप भी मानते हो कि उसने आपको एक मौका दे दिया, आपने पूरे विकास से, डेवलपमेंट के तमाम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया। आज युवा पूछ रहा था महाराष्ट्र में, खास तौर से माधव, जब बजट सेशन चालू होने वाला था, फर्स्ट डे उन्होंने धमाका कर दिया। आज महाराष्ट्र के अंदर पूना का रेप केस के ऊपर बात होने वाली थी, मुंडे के ऊपर जो मर्डर का चार्ज लगने वाला था उसके ऊपर बात होने वाली थी, किसान फार्मर जो हर दिन आत्महत्या कर रहा है उसके ऊपर बात होने वाली थी, मगर तमाम बातों से ध्यान भटका दिया और पूरा बजट सेशन खराब कर दिया, जिसका पूरा कसूरवार एसपी का एमएलए था, जिसने बीजेपी को मदद जी की। एक सवाल, अगर अब सुधांशु जी उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल पूछूंगा, बट आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, यू कैन अक्यूज बीजेपी ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट व्हाई डिड यू विजिट द ग्रेव ऑफ औरंगजेब अलोंग विद योर लीडर मिस्टर ओवैसी देन सर? देखिए माधव, इट इज एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. Visit a grave, okay, we've been there, we went there, remove the ASI protection, we won't go there. But on the other hand, Advani ji, he visited the grave of Jinnah. Prime Minister Modi visited the grave of Bahadur Shah Zafar. You won't call them anything. Why? What is the harm in visiting the grave? There is no harm in visiting the grave. See, we any can... stretch of imagination, sir, Aurangzeb is a tyrant. I hope you agree to that. So why are you venerating such a person? Why are you respecting I go such with a the person? history. Now you cannot change the history. If you want to dig up the grave, I will tell Sudhanshu, okay, let us go and dig up Taj Mahal as well, Red Fort as well, because they are also built up by the Mughals. You hate Mughals, but you love the Mughlai dishes. Okay. They love it very much. They love butter chicken. They love Mughlai dishes you are a lot. practicing the But they have politics the of Mughals. But from 15 August, Let him answer your 26 January, question now. from the Prime Minister unruffles the flag. That Let him place answer. you won't touch anything. But you want to dig up the grave after 300 years. I'm asking him After those 300 questions. years. Why? I thought the country is I'm going asking you forward. the I question. wanted the country to go forward, have bullet trains, employment. Like China has gone so forward, but we have gone 300 years back. Okay, Every we are day going since back 30 in days time. we are talking about Okay, 300 got back your history. point. Sudhanshu Trivedi, And second, respond. that's नहीं, 10 seconds. development वाले point Why पे, don't let we us- talk let us about the ask him about Britishers? development. एक मिनट सुधांशु भाई, आप मुगलों की बात कर लेते हो, रंगा संगा की आपने बात कर लिया, आप अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? जनरल डायर ने अच्छा काम किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर कर दिया था, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी आप बात करोगे तो आपको उसके चमचों की बात करना पड़ेगा, आपको उसके बुट लिकर्स की बात करना पड़ेगा, उनकी बात करना पड़ेगा जो माफीनामे पे माफीनामे दे रहे थे अंग्रेजों को। इसलिए आप हिस्ट्री में वहां नहीं जाना चाहते। One by one. Let's go one by one, Varis Pathan. The money issues that you have covered. But I want to ask you on the first question that he raised, that by removing the grave, will we be undoing history? Shouldn't the grave be there so that we know this दोनों person बातों is a में जवाब tyrant? देता हूं। What is the BJP's position? Are First, you in I favor of will removing the grave? take out the mask from his face. इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों का औरंगजेब से क्या मतलब है? इन्हीं के नेता गुरुद्दीन ओवैसी बोले थे ना, हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की। ये हम कौन थे और 800 साल हुकूमत करने वाले कौन थे? अभी इनके मुंह से निकला, इनके नेताओं ने बोला था, आगरे का ताजमहल तुम्हारे बाप ने बनवाया, लाल किला तुम्हारे बाप ने बनवाया। मेरे भाई, ये बाप कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। और अभी राणा सांगा वाले स्टेटमेंट में याद करिए, रामलीलाल सुमन का स्टेटमेंट क्या है? कोट अनकोट, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। अखिलेश जी ने भी अपोज नहीं किया ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रामजीलाल सुमन। न ये बोल रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इज एक्सेप्टेड। आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप समाजवादी रही बात पार्टी इसकी- को सवाल सर, करो कि अब उनका पूरी क्या बात। रंगा सर, संगा मैंने- क्या मैंने बोलना है। statement हम तो सिर्फ किया। इतना बोल रहे कि वायलेंस सुनिए, नहीं होना वारिस चाहिए, पठान, वारिस पठान, you had your say. तोड़बाजी नहीं होना चाहिए। He बस didn't हम लोग interrupt इसकी you. बात Let's करें। अरे भाई, मैंने तो Let's आपको be fair. कोट He didn't किया। अब दूसरी बात इन्होंने कहा उखाड़ने की क्या जरूरत है? हम भी मानते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ, हर बड़े शहर के हर बड़े बड़े चौराहों पे किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया, फलाने फलाने वॉइस रॉय मूर्तियां लगी थी कि नहीं? उखाड़ी गई थी कि नहीं? क्यों उखाड़ी थी कांग्रेस ने? ये गुलामी के प्रतीक हैं, ये खड़े होकर भारत की को सम्मान नहीं देंगे। 1968 तक दुख की बात थी, किंग जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी रही थी, उखाड़ी गई थी कि नहीं? तो मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं भाई, जो पॉजिटिव देता हूं इंस्पिरेशन, उसको अब मैं ये कहना चाहूंगा, औरंगजेब से तो इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है, एक से एक बड़े। किसको मोहब्बत है बताओ मुझे, यहाँ पे औरंगजेब को कौन सी मोहब्बत है? मैं प्रूव कर रहा हूं, अभी सुनिए ना। औरंगजेब की एक कब्र पे जाते हुए इनका और ओवैसी जी का फोटो है। सैयद इब्राहिम रसूल खान की कब्र पे गए हैं? नहीं। आलम शेख की कब्र पे गए हैं? नहीं। मलक मोहम्मद जायसी की कब्र पे गए हैं? नहीं। अब्दुल रहीम भी नहीं खान गए। की कब्र पे गए हैं? नहीं। जिन्ना की नदीम कब्र पे भी अकबराबादी की नहीं कब्र गए। पे गए हैं? नहीं। यहाँ पे मोदी जी गए थे, और अडानी जी मैंने गए थे। डिस्टर्ब नहीं किया। Varis, अब मैं बताना चाहता हूं, आगे ले जाओ, पीछे क्यों ले जा रहे हो? हमने डॉक्टर कलाम को प्रेसिडेंट बनाया,
आलम इस्लाम में पिछले 300-400 सालों में कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ, नॉट अबाउट इंडिया, इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड में। जो बैतुल हिकमत था ना 10th सेंचुरी का, उसके बाद से पैदा होने बंद हो गए इस्लाम में साइंटिस्ट लोग, वो कलाम साहब को बनाया। मगर मैं आप लोगों से कहता हूं, कलाम साहब का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक दिन हुआ। कितने लोग गए कलाम साहब के नमाज जनाजा में और कितनों ने स्टेटमेंट दिया याकूब मेनन के लिए? बस ये साफ है कौन किसके साथ जोड़ना चाहता है। और आज के वर्ल्ड में मैं आज की पॉलिटिक्स में कहता हूं, मैं मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी और हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल क्लास में आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के गवर्नर से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान दिखा दीजिए जो कुरान से लेकर हदीस तक कोई कोट कर सकता हो। हमने उसको गवर्नर बनाया, मगर आपको वो अच्छा नहीं लगता। कलाम साहब को प्रेसिडेंट बनाया, वो अच्छा नहीं लगता। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके फैमिली, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, वो अच्छा नहीं लगता। आपके प्राइम मिनिस्टर यासीन मलिक को बुलाते थे जिसने 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स के मर्डर का जिसके ऊपर चार्ज था। इसलिए कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे ले जा रहा है। 20 मिनट हो गई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, but I want to ask you one simple question. आपके जो लीडर मिस्टर ओवैसी, उन्होंने recently 2 statements दिए which are extremely polarizing. In the context of Sambhal, he said that the police chowki that was made, it was made by land from Muslims. That was proved to be wrong. After a sensitive issue like Nagpur violence, he made a claim about certain religious verses being burnt that was denied categorically by the government. The point is, anybody can make any claim in a democracy, but a leader of a political party like yours should be a little responsible. Is it not the case that he has made irresponsible statements which are polarizing in nature, which also have the potential to generate conflicts and violence in society? Allow me. I understood your question. Now, how did the Nagpur started? You have to go to the root cause of it. Since several days, we have been telling the Maharashtra government, the Chief Minister of Maharashtra, Fadnavis, they said that you have let loose some of your people who are just going ahead every day and using such kind of unparliamentary language against the particular community. आपने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया है जो हर आए दिन आकर मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करते हैं। उनके ऊपर लगाम लगाइए, उनको रोकिए। जैसे कि नीतीश राणे ने आके कहा कि मस्जिद में घुस के चून चून के मारेंगे, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। उस पर FIR आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। नरसिंह रामगिरी, उसने आके हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस वक्त भी कहा कि हम FIR है उसके ऊपर, उसको अरेस्ट करिए। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने नहीं किया। आए दिन ये जो नागपुर का इंसिडेंस हुआ, उसके 3 दिन पहले हैदराबाद से आया हुआ तेलंगाना से बीजेपी का MLA पूना में था। पूना में उसने भड़काऊ भाषण दिया, उसके बाद में देखिए नागपुर जल गया। तो आपके लोगों के बयानबाजी की वजह से, हेट स्पीचेस की वजह से ये हुआ। और वहां भी क्या हुआ, आप जो बोल रहे हो ना माधव कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, देयर आर विजुअल्स। हम तो घर में बैठ के नहीं बनाते, वीडियो है, विजुअल्स है जो सब दर्शाता है कि नागपुर क्यों हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा कि नागपुर हिंसा की मेन वजह थी छावा फिल्म। छावा फिल्म की वजह से काफी औरंगजेब के खिलाफ और नफरत पैदा होने लग गई। आपने वहां आया, लोगों ने देखा कि कोई चादर पे लिखा हुआ था, क्या था, मैं तो नहीं बना रहा था वहां पर, मगर उसकी वजह से भड़का। और होता क्या है बाद में, आप देखिए, आप बोलोगे वारिस पठान का गला भी दबा और मेरी आंख भी बाहर नहीं आए, ऐसा हो रहा है। आपने एक FIR रजिस्टर किया जिसमें से 7 से 8 बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को अरेस्ट किया। उनको कोर्ट में आप ले गए, 5 मिनट में 3-3 हजार रुपए की बेल पे सब बाहर आ गए। वहीं पर 52 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर FIR हुआ है जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आज भी वो जेलों के अंदर है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया नवंबर के अंदर, स्ट्रिक्ट तौर से बुलडोजर के ऊपर कहा था कि अगर यदि एक एक्यूज आपको लगता भी है आदमी के ऊपर कोई क्राइम किया इसने है, तभी भी आप उसका घर को बुलडोजर से नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आप बुलडोजर से एक आदमी का घर नहीं उड़ाते, उसके पूरे परिवार को आप नुकसान देते हो। ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, अगेंस्ट द लॉ है। फिर भी उत्तर प्रदेश में तो हो ही रहा था, महाराष्ट्र के अंदर जाके आपने वो फहीम का घर को बुलडोजर से उड़ा दिया। ये तो बाद में महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट ने रोका आपको, यानी नहीं तो आप तो संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हो, कायदे कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हो। लॉ का प्रोसेस होता है। सुनिए माधव, अगर आपको लगता है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है तो उसमें कानून है, उसके अंदर आप उसको नोटिस दो, नोटिस का वो रिप्लाई देगा। उसके बाद अगर कोर्ट बोले कि ये क्या इलीगल स्ट्रक्चर है, आप जाके तोड़ दो, इलीगल अतिक्रमण है आप तोड़ दो। बट हु हैज गिवन यू द पावर्स टू गो देयर विद द बुलडोजर एंड बुलडोज समबडीज फैमिली? अरे इट टेक्स years to build a house and you take just 10 minutes to remove the entire demolition. You have asked 3 questions, sir. Let him answer those 3 questions. Is this law? Is this justice? Is this humanity? No, those 3 questions that you have asked. One is the polarizing atmosphere, statements made. Why no action against Nitesh Rane? And not just his party, other political parties are also saying that. Number 1. Number 2, the
very fact that the High Court had to intervene to stop bulldozer action in the case of some of the accused raises questions about whether, the kind of politics that's been played out in UP is now repeating in Maharashtra. Your response? If he is saying that the reaction from the Muslim community was spontaneous, तो ये छत पे पत्थर कहां से आ गए? वो स्पॉन्टेनियस आ गए? मतलब वो कोई आसमान से यूं किया स्पॉन्टेनियस और आ गया? साहब, दिस इज द प्रूफ. अदरवाइज मैं पूछना चाहता हूं, हाउ कम द ब्रिक्स कम on the roofs of the houses? That shows that this is an alibi, that it is spontaneous. It is being well mastermind and planned. That's the things are coming in the investigation. Now coming to the provocative speech. Sir, if party like them are giving, it's like the devil is giving a sermon. 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे. ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी. 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा. ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था, जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सब तो सेकुलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं. सरतन से जुदा, अरे ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं. This is the dichotomy of the character, and the intellectual establishment of India has been totally captivated and perverted by these type of arguments, that their view has become so much lopsided that has created this type of situation. Otherwise, if a justifiable approach has been there, I think this type of discontent in the society and reactions in the society would not have been there. Okay. And one more thing. अभी जवाब दे रहा हूं आपको. आपने क्या बोला? पत्थर आसमान से टपके, जमीन से उगे. मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये क्या पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? अगर इतने पत्थर जमा हो रहे, आप अपने आप को अपनी सरकार को गुनहगार नहीं ठहराओगे? ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन, तो मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में जितने बुलडोजर एक्शन हुए, एक डिमोलिशन को कोर्ट से गलत सिद्ध कर पाए? नहीं. All were illegal constructions, duly notices were served. अब आप ये कह रहे हैं कि साहब एक गलती की वजह से दूसरा पूरी बात है. एक दिखाइए ना जहां कोर्ट ने कहा डिमोलिशन गलत है. आपने एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया, इसके नाम पे घर ही नहीं था. वो घर उसकी बेटी के नाम पे था. आपने जाके उसका घर तोड़ दिया. ये भी रीजन तो ये लॉजिक दिया जाता है कि एक अपराध के लिए दूसरी सजा कैसे दी जा सकती है. मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप कार चलाते हुए जा रहे हो या बाइक चलाते हुए, ओवर स्पीडिंग हो, पुलिस वाला रोके, फिर वो कहे गाड़ी कागजात दिखाओ. अगर कागजात नहीं है, डीएल नहीं, तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं सिर्फ ओवर स्पीडिंग का चार्ज करिए. कागजात नहीं है तो कहे गाड़ी जमा हो जाएगी. कागजात नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, देन योर व्हीकल इज सीज्ड. यू कैन नॉट से इट इज जस्ट द केस ऑफ ओवर स्पीडिंग. सो व्हेन ए क्राइम इज कमिटेड, the entire background of the criminal is scanned, and wherever it is found, it is given. That's why they haven't got a single cancellation from court. This is again, and camouflage has been set, try to put up the things in a different perspective. और हकीकत जानते क्या है? इनके साथ यही प्रॉब्लम है. जिन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, जब कभी मोदी जी की सरकार नहीं थी, ये बताइए, ये पत्थर की बात कह रहे हैं, ये कश्मीर में पूरी भीड़ निकलती थी कि नहीं? जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब को मार देती थी. अब दिखती है भीड़ पत्थरबाजों की. कश्मीर में बंद हो गया कि नहीं? कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था. एवरीथिंग वाज मास्टरमाइंडेड. 23 मिनट हो गए. 23 मिनट हो गए. अब मैं आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, आपको बीजेपी का हकीकत चेहरा बताना चाहूंगा. 23 मिनट हो गए, जिसमें 15 मिनट सुधांशु जी ने भाषण दिलाया, चिल्ला पुकारा. मुझे बताओ, इनकी बात में एक भी बार इन्होंने डेवलपमेंट, विकास की बात की, एम्प्लॉयमेंट, जॉब की बात की? एक भी मर्तबा बात नहीं की 23 मिनट में भी. ये असली चेहरा है बीजेपी का. बात है कि पत्थरबाजी, मुसलमान, हिंदू, इसके सिवाय टॉपिक ही पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है. अरे अभी तो सौगात ईडी आ रहा है. सुनिए, आज तक तो ये सौगात ईडी दे रहे थे. ईडी जा रही थी सबके, आप सौगात दे दिया. सुधांशु भाई, 25 करोड़ की आबादी है, 32 लाख लोग को देके क्या करेंगे? बाकी के सब कहां जाएंगे? और आपको क्या लगता है, मुसलमान आपके 32 लाख के लोग ये क्या भूखे है क्या? आपके मोहताज है क्या आपकी ईडी? अरे नहीं चाहिए हमको ऐसी ईडी. आपने हमको बहुत सौगातें दे चुकी. आपने हमको दिया गोदरा. अरे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया. कितनी बड़ी सौगात आपने दी. जकिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इंतकाल फरमा गई, उसको आपने इंसाफ नहीं दिया. उसको इतनी बड़ी आपने सौगात दे दी. आज भी आप सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन के पहले एक ये सौगात का एक छिपछुरा छोड़ के ये करो, कोई मुसलमान नहीं लेने वाला. अगर देना है मुसलमानों को, हमारी वक्फ की जमीन के खिलाफ जो आपने बिल निकाला है, विड्रॉ करो. चलो मानेगा वारिस पठान, क्या आपके अंदर वाकई में 56 इंच का सीना है? मैं आके आपको सलाम ठोकूंगा. मोदी जी, आप हटाओ वक्फ का बिल, आप इंसाफ करो मुसलमानों के
के साथ, इंसाफ करो उन लोगों के साथ जिनको आए दिन आप उठा के जेलों के अंदर बेकसूर लोगों को बंद करते हो। अगर आपको कुछ सौगाती देना है, रोको नफरती चिट्टू को जो हमारे भारत देश में हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करके देश का, राज्य का माहौल खराब करते हैं। तब हमको लगेगा कि आप वारिस जी- इंसाफ कर रहे हो। ये रेवड़ी बांटने से वारिस जी, क्या आपका होने एक वाला है? स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूं. I just want to read out your own statement to you. You have talked about, I'm quoting you. Today I met actor Akshay Khanna, who portrayed the role of Aurangzeb in the movie Chhawa. Akshay is a wonderful person. If a Muslim actor had played the role of Aurangzeb, the situation might have been entirely different. What kind of comment is this? Yes, sir? of course. Is this not polarizing? See, I met Akshay Khanna. We met. It was nice in talking. And we just spoke about certain topics. And I said, sir, आपने तो छावा फिल्म कर ली, आपको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप तो अक्षय खन्ना हो, विनोद खन्ना के बेटे हो। लेकिन यकीन मानो अक्षय, अगर आपकी जगह पर कोई और मुस्लिम ने ये रोल कर दिया होता आपकी जगह, कोई भी मुस्लिम एक्टर होता जिसने रोल किया होता, तो आपसे क्या से क्या हो जाता उसके साथ। अरे आप तो उसको औरंगजेब समझिए, उसका मोब बट लिंचिंग ऐसे कैसे कह सकते हैं? शाहरुख खान है, आमिर खान है, क्या मोब लिंचिंग याद आता है So आपको? many ट्रेन Muslim में आपको actors दाढ़ी also टोपी वाला successful. दिखा नहीं, मोब लिंचिंग। रस्ते पे आपको दिखा मुसलमान, इसने कुछ भी बोला, मोब लिंचिंग। This is गाय what की I'm saying. तस्करी के नाम पे झूठी वारिस बेबुनियाद मोब लिंचिंग। अरे कहां तक देश को ले जाएंगे? हलाल हराम औरंगजेब, but वारिस राजा, पठान, संघ, this is what I'm इसी के saying. ऊपर पूरे देश को आप खत्म कर You दोगे। have to be क्या responsible development, in your विकास commentary, आबाद sir. करना You have to be responsible in your commentary also, both you and your leader, because this is the kind of statement that can evoke some strong reactions. But you want to respond to that? What अब मैं the बताना reactions चाहता हूं, from their सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं फिल्मों में एजेंडा क्या चलता था। ये कह रहे हैं चलो एट्रोसिटीज वाली फिल्म अलग, मैं मोहब्बत की फिल्मों की बात कर रहा हूं। फ्रॉम दी एज जनरेशन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स टू प्रेजेंट जो फिल्में बनी है मोहब्बत की, उसमें क्या है? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही सब है ना। लैला मजनू। आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीबी रही हो। दर्जन दर्जन भर ऑफिशियल बीबियां, हरम में 200 300 औरतें और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक ही एजेंडा है मोहब्बत। फैक्ट से एकदम हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। आप मुझे बताओ 10 साल में आपने मोहब्बत फैलाई है नफरत? 10 साल में क्या फैलाया मोदी ने? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। जवाब नफरत के सिवा कुछ नहीं फैलाया एक आपने। मुगल बादशाह बताओ जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो। मगर सारा सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही है एजेंडा रोमियो दिमाग में जूलियट। बनाया गया है। और आज भी ये 4 बीबी के रोमियो साथ जूलियट, है, हीर रांझा, ये 4 फूले। बीबी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम की प्रतीक की शेरो शायरी इनकी एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है। समझिए एजेंडा, समझिए एजेंडा आप अच्छी तरीके से। एजेंडा सब आप समझिए, सुनिए, एक ही अब एजेंडा मैं है बताता हूं कि सर, किसी आप- भी तरह आप देश में इसी नफरत बोले, फैलाना है, बारिश पोलराइज कीजिए। करना है। अब जवाब दे दीजिए। आप सुनिए, इन्होंने कहा डेवलपमेंट की खाली बात की और फिर धीरे से हट गए। अब मैं बताना चाहता हूं, एक दौर था जब भारत की ग्रोथ रेट 2% रहती थी, 1.8 और 2% इन द डिकेड ऑफ 80s। जो लोग यहां होंगे सबको पता होगा, उसका क्या कह के मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया कभी 2% से आगे तो ग्रो ही नहीं कर सकता। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10%, 12%, 15%, 16%। तो उसे कहा जाता था ये 2% तो हिंदू ग्रोथ रेट है। आप सबने वो टर्म सुना होगा, इट इज 2% हिंदू ग्रोथ रेट, और महंगाई की दर 10% रहती थी। और जब से हिंदुत्व वाले आए हैं, अब ग्रोथ रेट क्या है कि आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये कहती है, एक दौर था इनके दौर में, जब याद करिए वो पुरानी फिल्म का गाना है ना, फिल्मों की बात हुई है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उससे पहले प्राण क्या कहता है? क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे कंट्री का? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। उसके बाद गाना शुरू होता है। ये इंदिरा गांधी के जमाने की फिल्म है। और अब क्रिस्टीना जॉर्जिवा आईएमएफ की चीफ कहती है, इंडिया मेरे को बहुत याद करोगे यार, तो हर बात याद आएगी। मैक्सिमम इट इज गोइंग टू बी 15%। इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन इन द ग्लोबल वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हैं सर? अच्छा सुनिए, Respond, Varis, respond. क्या बीच में अरे अब यही होता है जब फैक्ट खराब आया देश को आगे लेके जाना क्या Okay, पीछे one लेके by one, जाना? one by one, आप मैं चाहता हूं one by कि one. देश को आगे ले जाना, आप पीछे लेके जाना चाहते हो 300 All साल right. पुराने। अरे आप या गाने गा रहे हो, गाने Okay, लिखो, okay, 10 गाने seconds. Varis, 10 seconds. Sudhanshu concludes and then you can come in. और अरे इन्फ्लेशन रेट क्या है? 10 seconds. अरे बताइए इन्फ्लेशन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कुछ बननी नहीं चाहिए। पता है। बताइए मेरे को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, बताइए मेरे को 15 लाख आ गए अकाउंट में, आया कि नहीं Now आया? he is अरे कुछ exposed. नहीं आने वाला है। इनके पास आप पूरा का एक्सपोज कर दिया मैं development आपको। तो अब आ गया हमारा एक ही पोलराइजेशन मुद्दा, मुसलमानों को गाली दो। अरे भाई, सबसे development top से भाग target। के polarization बताओ में मुझे ये जा रहा है।
डेवलपमेंट में क्या किया आपने? बुलेट ट्रेन आने वाली थी, किधर है? मैं बोल लूं। बुलेट ट्रेन कहाँ घूम रही है? मैं ढूंढ रहा हूँ दूरबीन लेके, कहाँ घूम रही है बुलेट ट्रेन? बताओ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, मैं रस्ते में पकड़ पकड़ के पूछ रहा हूँ, बताओ तेरे को रोजगार मिला क्या? युवा बोलता नहीं मिला वारिस भाई। एक एक को पकड़ पकड़ के पूछना, पन्ना लगाया तेरे अकाउंट में? बोलता नहीं मिला वारिस भाई। ये जुमला 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 है शिव भाई। जुमले के सिवा आपके पास देने के लिए कुछ है तो बोलो, पब्लिक को दे दो ना। अभी आप सौगातें ईदी बांट रहे हो, वे सौगातें जुमले बांट बांट के 10 साल आपने देश को बेवकूफ बना दिया। पहली बार ईद आई क्या? 10 साल से आप सत्ता में हो, 20 ईद आके चले गई। 19 ईद में आपने सिर्फ नफरत बांटा, ईडी बांटा। ये ईद में आप सबको किट बांट रहे हो। क्यों बिहार आ रहे हो? बिहार गया, खसक गया, Okay. पायदन मैं गया। बोल सकता हूं। We're drawing to the end of the debate. Waris Pathan, we're drawing to the end of the debate. अब मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैंने शांति से सुना है वैसे आप सुनेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। अब मैं बोलता हूं, इन्होंने कहा 20 साल हैदराबाद में आज तक एक दिन के लिए हमारी हुकूमत नहीं रही है। सिर्फ हैदराबाद से वो बातें क्यों आती हैं कि मुस्लिम बच्चियां 8-8, 9-9, 10-10 साल की बेच दी जाती हैं, मिडिल ईस्ट में लोग चले जाते हैं, आप ही लोगों की हुकूमत है वहां। क्यों इतनी गरीबों गुर्बत है? हैदराबाद के तो निजाम थे, निजामुल मुल्क थे, हुक्मराने वक्त थे, पैसा बह रहा था, क्यों इस मुकाम तक पहुंच गए? एक दिन बीजेपी की सरकार नहीं रही है। और डेवलपमेंट और उसकी बात करो तो मैं बताना चाहता हूं, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर नफरत फैलाने में, फर्स्ट नंबर नफरत फैलाने में आप फिर बीच में बोलने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, फर्स्ट नंबर नफरत फैलाने में, फर्स्ट नंबर जुमला में, फर्स्ट नंबर झूठ में। ये भी आप रिकॉर्ड बता दो बीजेपी का रिकॉर्ड बता दो। सबसे अव्वल नंबर नफरत फैलाने में अगर विश्व में कोई है तो ये बीजेपी वाले हैं। फर्स्ट नंबर अगर कोई सबसे बड़ा झूठ फैलाने में विश्व में कोई है तो बीजेपी वाले हैं। फर्स्ट नंबर अगर सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी देने में कोई पूरी दुनिया में तो बीजेपी वाले, इनके पास जुमले के सिवा कुछ नहीं है। देश को पूरी अब भाई आप बहुत बोलिए, अब कृपया मुझे बोलने दीजिए। तरीका वारिस भाई ठीक नहीं है, आप लगातार बोल रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट, नफरत क्या है? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म नफरत नहीं है। हिंदू धर्म में चाहिए है, नफरत नहीं है। हिंदू धर्म वायरस है, बैक्टीरिया है, नफरत नहीं है। हिंदू और खतरे में, ये झूठ नहीं तो क्या है? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, IAS ऑफिसर हिंदू, सारे हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में कैसा? You got a chance to respond, Waris Pathan. मुसलमान वाले टोपी वाले खतरे में है भाई। Okay, आपने Waris Pathan, let's not do this. We have to wrap the debate now. We have to wrap the debate. We have very limited time. 30 seconds, Sudhanshu, closing comments. व्यूअर्स देख रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे कौन फैक्ट पे है, कौन हड़बड़ाहट बौखलाहट किसी आर्ट में जारहियत कर रहा है। सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी में सबको दिखाई पड़ रहा है। वारिस जी, please. अब मैं कहना चाहता हूं, नफरत ये नहीं है कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम जीते तो कहा गया बीजेपी सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। आज अखिलेश यादव जी का बयान है कि वो साहब गौशाला में से दुर्गंध आती है, और हलाल होते हुए बकरों में से सुगंध आती है। मैं बताना चाहता हूं, जो कहते हैं गोमूत्र वाले राज्य में जीत सकते हैं, तो वारिस भाई कान खोल के सुनिए। अमेरिका में अब तो भाई ऐसा नहीं है। Waris Pathan, no, this is not right. This is not right. Gentlemen, no. Sudhanshu Trivedi, Waris Pathan, one second. Let me come in here. No, this is not correct. कहीं पर यम्मी, कहीं पर मम्मी, ऐसा चलता है क्या? Gentlemen, we अब have सुनिए, run out of time. मैं कहना We have चाहता run हूं, out of time. सुनिए एक लाइन, 10 seconds. और कान खोल के 10 सुनिए। seconds. गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, मेडिसिनल पेटेंट है यूएस में, एंड पेटेंट नंबर इज 6410059। कान खोलो अपने, समझ में All right. On that देश को लेकर चले note, जाएंगे। on that note, gentlemen, we have to wrap the देश को डुबा discussion. The देंगे next और session कुछ has to नहीं करने begin. वाले Waris Pathan, Sudhanshu Trivedi, thank you so much for joining us. And if anyone wanted the answer of why is politics in India polarized, you have a live demonstration in front of you today. Thanks so much for joining us.